Q amount of heat to the system, if you give Q amount of heat to the system, delta U amount of heat energy is used for change in internal energy, and the remaining will be used for the work done. Okay. And I've explained you that if you want to go according to the chemistry approach, when you substitute it, of course, you know, according to the physics approach, work done we take as PdV. According to chemistry approach, work done we take as minus PdV. Okay, so I'll be going with the physics approach. So simply you will substitute as Q is equals to delta U plus PdV. If you are going according to chemistry approach, please put minus PdV. This is important. Okay, so I've already discussed that according to the physics approach, if there is an expansion, of the gas, of course the volume is increasing, means here the system is doing a work, correct? The system is expanding. The work is done by the system. Here the work is done by the system during expansion. There is an increase in the volume, and hence the work in such cases is positive. Means work done by system. Work done by system is taken to be positive according to physics approach. Okay, so work done by the system is taken to be positive, or you can say during expansion, when your volume increases, your work done is positive, because work done and volume are directly connected to each other. So expansion हो रहा है तो volume increase हो रहा है, volume increase हो रहा है तो work done जो होगा positive होगा. And I explained you that of course there is this gas molecules. These gas molecules are using their energy to get expand here. They are pushing the piston ahead. Okay, means they are using their energy to push this piston. Fine. So of course, when work done is positive, your delta U is negative. Okay, fine. So एक चीज यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना. This vice versa concept is only applicable when you are not giving heat from outside. जब तुम हीट बाहर से नहीं दे रहे हो, you are not including heat. जब आप हीट इंक्लूड नहीं कर रहे हो और ये चीजें हो रही है, तभी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है. अदरवाइज ये जो कंसेप्ट है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, ये केस तभी एप्लीकेबल है, ये वाइस वर्सा केस तभी एप्लीकेबल है व्हेन यू आर नॉट गिविंग हीट फ्रॉम आउटसाइड. अगर हीट इंक्लूड होगा तो वो पूरा कंसेप्ट अलग तरीके से काम करेगा. सो इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन हीट, योर डेल्टा यू कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एज वेल एज जीरो. तीनों में से कुछ भी हो सकता है. तो ये जो केस है ये तभी एप्लीकेबल है जब आप एक्सपेरिमेंट में बाहर से हीट इंक्लूड नहीं कर रहे हो. हीट देंगे तो क्या होगा, वही मैंने बोला, अगर आप हीट देते हो तो आपका डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, इट कैन बी जीरो आल्सो, या इट कैन बी पॉजिटिव. इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो. हम लोग ऐसा एग्जांपल करेंगे जहां पर यू विल फाइंड दैट व्हेन यू आर गिविंग हीट फ्रॉम आउटसाइड, योर वर्क डन इज पॉजिटिव एज वेल एज योर डेल्टा यू इज पॉजिटिव. I'll explain all the terms. मैं बताऊंगी कब होता है ये. I'll explain you when it happens. Okay, fine. So ये जो vice versa का concept है, this one is only applicable when you don't give heat from outside. If you give heat from outside, this delta U can be positive, negative or zero. Work done positive है तो delta U negative तभी केस में होगा जब आप बाहर से heat नहीं दोगे. हाँ, of course बताऊंगी ओमा. I'll explain you everything. I'm going to take example for it. Okay, so the next case that we took, this was work done by the system, that is expansion, and according to physics it is positive. Okay, so of course this I have explained that this vice versa concept is only applicable when your Q is not, means that heat is not given to the system from outside. Now let's take an example for the compression. I have already explained these things in deep. Okay, when we talk about the compression, again I am not introducing heat here. By any of the process except heat, I am compressing the system. Means now work is done on the system. यहाँ पे work was done by the system. This is work is done on the system. System को compress कर रहा है. Of course volume is decreasing. Volume is decreasing.
correct? So work done in this case is negative, means when work is done on the system, when the work is done on the system, your work done is taken to be negative according to the physics approach. Okay, you can go for chemistry as well as physics approach, but जो continue करोगे वो चीज यहाँ पर ध्यान देकर चलना है. ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है इस पे ध्यान देना है कि अगर केमिस्ट्री अप्रोच से जा रहे हो तो यहाँ पे प्लस पीडीवी मत लेना, माइनस पीडीवी लेना. फिजिक्स अप्रोच से जा रहे हो तो सिंपल ये फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ जाना. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस दैट व्हेन देयर इज एन कंप्रेशन, is the things visible? मैं जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है? Or it have been hanged? Wait for a while. Hang it, miss. Yeah, wait. Then will be taken as negative. Okay, now we'll go ahead with the topics. As I said, this vice versa concept is only applicable when the heat is not given to the system. If the heat is given to the system, then of course you can have the delta U value as negative, positive, 0. It can be any value. Okay, so let's go ahead. As I've explained you that this first law of thermodynamics is an extension of conservation of energy. Okay, what is the difference between this and first law? Earlier conservation of energy and the first law, that your earlier conservation of energy only explains you about isolated system. Isolated system का मतलब ये होता है कि जहां पर there is no heat transfer system, means there is no heat transferring. Okay, but आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये समझाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह एप्लीकेबल है. मतलब अगर आपने क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, उसमें से कुछ अमाउंट वर्क डन में दिख रही है, तो कुछ अमाउंट जो है जो नहीं दिख रही है वो हो ना हो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में गई हुई है. मीन्स ऑलवेज वॉट एवर एनर्जी यू गिव टू द सिस्टम, that will be there in the output. Of course, some will be in the work, some part will be in the work done form, and the another part will be in change in internal energy. Okay, let's go ahead with some examples जहां पर हम ये देखेंगे कि how your delta U can be positive, negative if you are giving heat from outside. Let's take a system. I was discussing this some yesterday as well. So let's take a system. Okay, what I am doing, I am giving 200 joules of energy, heat energy to the system. इस system को मैं बाहर से 200 joules of heat energy दे रही हूँ, and I am finding that my work done is only 100 joules plus 100 joules. Okay, can you give me how much will be the delta U value? Can you say me how much will be the delta U value? 100, of course, because according to the first law of 100. thermodynamics, Q is equals to delta U plus W. Q is your 200, delta U हमको निकालना है, plus W is 100. Then it will be simply your delta U will be 100 joules. Okay, your delta U will be 100 joules. Next is, this is where you can observe that even if your work done is positive, your delta U is also positive, because now you are giving heat from outside. So that vice versa concept was only applicable when you are not giving heat from outside. Otherwise, your work done can be positive. If work done is positive, there is a possibility that your delta U can also be positive. Okay, let's go ahead with the next question. Let's take another system again, and we will observe that key when your delta U will be 0 or it have a negative value. Okay, let's go ahead with this part. Let's say that if the Q amount given is minus 200 joules, ठीक है, minus 200 है, and work done
is minus 100 joules. Okay, this is just a sum to understand the things. Then calculate the delta U value. How much is the delta U? How much is the delta U value? Q is equals to delta U plus W. Here Q is minus 200. Okay. यहाँ पे U Minus is 100. not energy. U is change in energy. Keep it in mind. U सिर्फ energy नहीं है. U is change in energy है. And change can be in negative. Negative का meaning इतना है. You know about what is negative. ये energy नहीं है. This is change in. This is delta U. Okay. So Q is equals to delta U minus 100. यहाँ जाके plus होगा. So delta U is equals to how much? Minus 100 joules. अब ये केस समझाती हूँ कि एग्जैक्टली आपको समझाना क्या चाहता है. लेट्स टेक अ केस कि जहां पर ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें सिस्टम अपनी एनर्जी यूज कर रहा है. व्हेन इट इज नेगेटिव इट सिंपली मींस, अगर तुमको याद हो जब मैंने एक्सपांशन का केस समझाया था, प्लीज लिसन, जब मैंने एक्सपांशन का केस समझाया था याद है, वहां पर जो अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी एनर्जी यूज कर रहे थे. दे वर यूजिंग देयर एनर्जी टू एक्सपांड. मतलब वहां पर जो डेल्टा यू मैंने तुमको कहा था कि इन दिस केस योर वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, करेक्ट, और डेल्टा यू इज टेकन टू बी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी यूज कर रहा है. तो ये ऐसा केस है जिसमें जो आप अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है और उससे ज्यादा वर्क डन दिख रहा है, मतलब जितनी एनर्जी तुमने उसको दी है उससे ज्यादा का वर्क डन हो रहा है, मतलब हो ना हो कि सिस्टम अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है. और जब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा तो वहां पर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. और डिक्रीज हो जाएगी मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, it will be negative because delta U is what, final energy minus initial energy, correct. तो अगर सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज कर ली है, अगर सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज कर ली है तो फाइनल एनर्जी छोटी होगी इनिशियल एनर्जी से, और उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में योर डेल्टा यू विल बी नेगेटिव. ये केस कब होता है, ये केस आपके केस में होता है, आपने कम खाना खाया, आपको काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो आपके बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब योर डेल्टा यू, अगर आपने एक ज्यादा अमाउंट ऑफ क्यू दिया है, उसमें से कुछ अमाउंट वर्क डन के लिए यूज हो रहा है, तो कुछ अमाउंट जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है. ठीक है, यहाँ पर आपने जितना अमाउंट, आपने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, उससे ज्यादा काम हो रहा है, तो आपके बॉडी की, आपके सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो रिड्यूस होगी एंड इट विल बी नेगेटिव. समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग द केस? अमन कुछ डाउट है पूछो. अमन आर यू क्लियर? Yes. समझा मैं बोल रही थी? Yes. Okay, let's take a case in which your delta U is 0. ये केस सिंपल सा फंडा है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दिया उतना ही अमाउंट ऑफ पूरी एनर्जी का अगर वर्क डन हो गया, जितना अमाउंट ऑफ खाना आप खा रहे हो उतने का सारे का आपने काम कर लिया, तो आपकी जो चेंज इन एनर्जी, सी कीप इट इन माइंड, दिस डेल्टा यू इज नॉट ओनली इंटरनल एनर्जी, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ये चीज आपको सम में सॉल्व करते समय भी ध्यान देनी है कि दिस डेल्टा यू इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. इट इज नॉट द चेंज इन एनर्जी, सॉरी, इट इज नॉट एन इंटरनल एनर्जी, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो ऑफ कोर्स जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बाहर से ले रहे हो, जितना खाना आप खा रहे हो, उतना ही वर्क डन आपने कर दिया, तो आपकी बॉडी का कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा नहीं, ना उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना उसकी खुद की एनर्जी जाएगी. मतलब इन तीन कंसेप्ट से हमको ये चीज क्लियर हुई कि अगर आप क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, उसमें से कुछ अमाउंट वर्क डन के लिए यूज हुआ है तो कुछ अमाउंट डेल्टा यू के लिए जाएगा. सेकेंड केस से ये समझा कि अगर आपने समझो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बॉडी में लिया है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बॉडी में लिया है, ओके, अमन प्लीज अनम्यूट, लेट मी कंप्लीट एंड देन आई क्लियर योर डाउट. अगर आपने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी को दी है
और बॉडी क्या कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, मतलब बॉडी क्या करेगी, अपना इंटरनल एनर्जी यूज करेगी, वहां पर देयर विल बी अ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू विच यू विल गेट द डेल्टा यू टू बी नेगेटिव. ओके, एंड द लास्ट केस इन विच अगर आपने जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है उतना ही अमाउंट अगर आपने वर्क डन में यूज कर लिया तो डेल्टा यू विल बी 0, मतलब आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. नाउ आस्क व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव. अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन एंड आस्क. हेलो मिस. हाँ बोलो. मिस वो हीट हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट भी चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी डेल्टा क्यू आएगा ना? नो 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 नो, ऐसा नहीं है. दिस क्यू अमाउंट इज यू आर गिविंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, तुम ये सिस्टम की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुम हीट बाहर से दे रहे हो. मैंने कहा ना यू आर गिविंग द हीट, तो आप बोल रहे हो कि मैंने 20 जूल्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैम मैंने 200 जूल्स का ही हीट दे दिया, मतलब मैंने स्टार्टिंग में कंसीडर किया है कि सिस्टम का खुद का इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम के पास खुद का क्यू कुछ नहीं है, मैं बाहर से सीधा दे रही हूँ, तो मैंने सीधा 200 जूल्स दे दिया. समझ में आ रहा है? मैं 200 जूल्स पे जाके एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. समझ में आया? मिस पर वहाँ पे पहले अगर कुछ नहीं है तो डेल्टा क्यू भी उतना ही होगा ना, 200. व्हाट डज इट मीन? कोई फर्क पड़ता है? देन तो ये तो सिर्फ सिंबल का काम करेगा. जस्ट एंड सिंबल. देन आपको पता है यू आर गिविंग अ 200 जूल्स. मैंने एक Already- एक्सपेरिमेंट पे जाके बात किया कि मैं एक पॉइंट पे मैंने 200 जूल्स दिया है, मैं एक सिस्टम में मैंने 200 जूल्स का पेट्रोल डाल दिया. समझ में आ रहा है? तो अगर 200, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 200 जूल्स का पेट्रोल डाला है तो मेरा गाड़ी 200 जूल्स की एनर्जी जनरेट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है. मेरी गाड़ी जो काम कर रही है, जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, वो सिर्फ 100 जूल्स का कर रही है. तो मेरे पास दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो 200 जूल की एनर्जी डाली थी विद हेल्प ऑफ अ पेट्रोल. ऑफ कोर्स किसी सोर्स से डालोगे, बट मुझे तो 100 जूल ही मिल रहा है. तो फिर आपको थर्मोडायनेमिक लॉ बताता है कि उसमें से 100 जूल आपके सिस्टम को गर्म करने में चला गया, इंटरनल एनर्जी में चला गया. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ मिस, वो समझा. So it's just and simple. You can represent it by delta Q. Not a big deal. But here delta Q does not have a mean. It simply means that आप एक particular experiment point पे जाके बात कर रहे हो. Nothing else. Here we are not talking in the terms of delta Q. मैम If you want, you can put it away. तो आपको starting में ही वो हमेशा आपको ऐसे ही बोलेगा कि 200 joules में दे रहा हूँ. ऐसे ही questions आएंगे mostly. हेलो And मैम if it is like that, delta Q का कहीं पे ऐसा कुछ meaning है, तो I'll find out and I'll tell you. ऐसा कुछ होता है तो. But mostly this delta Q they will directly give you कि this much amount of heat they are giving to the system. और कोई changes होगा तो वो बीच में बता देंगे कि this much amount of heat is being absorbed और this much amount of heat is being emitted. ऐसा कुछ होगा तो वो सब में आगे आगे बताते जाएंगे कि 200 जूल में से इतना काम होने के बाद इतना एब्जॉर्ब हो गया है, तो बचा हुआ एनर्जी, बचा हुआ हीट एनर्जी इतना है, अब बताओ वर्क डन. तो वहां पर आप डायरेक्टली फिर उस पॉइंट पे जाके बात करोगे. क्लियर? हेलो मैम हाँ. मैम वो जो हीट दी है आपने वो -200 जूल, मैम वहाँ पे माइनस क्यों लिया वो समझ नहीं आया. माइनस यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया गया है कि यहाँ पे और यहाँ पे दे आर जस्ट सिंपली शोइंग विद द हेल्प ऑफ माइनस कि ये जो -200 है और ये जो -100 है, ऑफ कोर्स योर -200 इज स्मॉलर देन -100. आप इसको पॉजिटिव लेके भी काम कर सकते हो. दे हैव जस्ट गिवन एन एक्सपेरिमेंट. माइनस का मतलब ये समझ जाओ कि जितना अमाउंट ऑफ हीट है. सी अगर इस वाले पार्ट को अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पर सिस्टम में से हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है. देयर इज अ लॉस इन द हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन योर एनवायरमेंट का टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्यू का अमाउंट क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा. समझ में आया? हाँ तो व्हेन क्यू इज गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, इफ क्यू इज गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम और सिस्टम उस क्यू को बाहर भेजने में कुछ वर्क डन कर रहा है विच इज -100 जूल्स, ठीक है, तो जब सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर की तरफ जाती है तब भी यू कंसीडर दैट योर हीट एनर्जी इज नेगेटिव. हालांकि ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए दिया है कि आपका क्यू का अमाउंट इज लेस एज कंपेयर टू द वर्क डन, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द डेल्टा यूज टू बी नेगेटिव. दैट्स ऑल. एनीथिंग एल्स? कविता कुछ डाउट है पूछो. हेलो हाँ कविता पूछो. मैम, हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है? जरूरी नहीं है. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है ये बताने के लिए कि जो मैंने वाइस वर्सा का कंसेप्ट लिया था वो तभी पॉसिबल था जब आप बाहर से हीट ना दो. अगर आप बाहर से हीट दे रहे हो या बाहर का हीट कंक्लूड कर रहे हो
ठीक है, तो आपका जो डेल्टा यू है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। मतलब हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है? नहीं, वही मैंने मैं यहाँ समझ। पे तुमको डेल्टा यू के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए किया है। अच्छा, आपको कोई भी अमाउंट देके कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ ठीक है। आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। आयुष, हेलो अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो। मैम, यहाँ पे आपने ये Q माइनस 200 जूल्स एक्सप्लेन करने के लिए दिया है या Q माइनस 200 जूल्स होता भी है? होता है ना, जब आपका सिस्टम का टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा हो और आपका सिस्टम से हीट एनर्जी लॉस हो तो क्यू को नेगेटिव लिया जाता है। मैम ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई है। लेकिन अगर हम लोग Q प्रोवाइड कर रहे हैं हाँ, मैम, अगर हम लोग Q सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैम वो तो Q को यूटिलाइज करेगा। क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम, अगर ये जो इसको आपने बोला और Q अच्छे देना से, है इसके सिस्टम को, हाँ ये देखो, पर अगर तुम यहाँ पर बोल रहे हो, यहाँ पर इसको तुम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर समझो तुमने +100 +200 का तुमने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, +200 का तुमने जूल्स दिया उसको एनर्जी, और अगर आपका वर्क डन 300 जूल्स का हो रहा है, ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, काम ज्यादा कर रहा है तुम्हारा सिस्टम, जूल्स एनर्जी आपने 200 की दी है, काम 300 जूल्स का हो रहा है, मतलब इसमें से जो 100 जूल्स एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहाँ से जा रहा है? आपके इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ दिस इज व्हाट इज द पार्ट। सो ये आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करने के लिए दिया है कि अगर आपका जो भी अमाउंट ऑफ क्यू आप देते हो, अगर उससे ज्यादा का वर्क डन हो रहा है, क्योंकि माइनस में क्या होता है, माइनस में जितना छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो आपने अगर एक क्यू अमाउंट ऑफ वर्क दी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया है और काम उससे ज्यादा हो रहा है, तो आपका डेल्टा यू क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो आपकी इंटरनल एनर्जी को यूज करके हो रहा है, मीन्स योर इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। दैट इज व्हाट इज द पार्ट, नथिंग एल्स। आपका Q का वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों भी हो सकता है। पॉजिटिव कब? जब आपका सिस्टम Q को एब्जॉर्ब करे। नेगेटिव कब? जब आपका सिस्टम Q को रिलीज करे। और जीरो तब जब आपका सिस्टम Q को ना तो रिलीज करे ना तो एब्जॉर्ब करे। सो आपका Q का वैल्यू कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। आपका डेल्टा U का वैल्यू कैन बी ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, एंड योर वर्क डन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब ये तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों केसेस को फॉलो कर सकते हैं इन अ सिस्टम। आर यू क्लियर विद द थिंग्स? शुड आई गो अहेड? let's go ahead then. Okay, now the next topic that we are going to discuss is the new topic for you all. That is, I think you have already done with this topic. There are two kinds of system. Okay, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. What are these variables? First we will understand those things, then I'll come to the types. What are the state variables or property of a system? State variable या property of a system का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? What is state variable? What is state variable? वो आपको पाथ पे थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड नहीं करता। वेरिएबल्स? हाँ, वो हेलो, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, वो पाथ पे डिपेंड नहीं एग्जैक्टली करता। एग्जैक्टली मतलब ये कि जो भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो, द डेफिनेशन फॉर इट, जो भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो, such type of variables, for example pressure, volume and temperature, such type of variables are considered to be your state variables. Okay, अब आपके जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, और ये मोस्टली कब मेजर किया जाता है? व्हेन योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाकर इन चीजों को मेजर किया जाता है. ओके, सो द प्रॉपर्टीज, द वेरिएबल्स व्हिच यू कैन मेजर at an equilibrium conditions, such properties, such variables are called as state variables or property of a system. Okay,
Now this state variables can be of two types. क्या हुआ ओम? Please ask. कुछ नहीं मैम, वही कि थर्मल इक्विलिब्रियम ये अपना क्या बोलते हैं स्टेट वेरिएबल से पे डिपेंड रहता है। हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो आप उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाओगे. So you need to measure it at equilibrium condition. Okay. Now मैम बट वो the state इक्विलिब्रियम जो है वो भी ये क्वांटिटीज पे डिपेंड है ना, वेरिएबल्स पे. हाँ, of course. वही आप इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हो. किसी भी दो चीज की इंडिपेंडेंसी होती है, ठीक है, तीसरी चीज अपने आप इन दोनों पे डिपेंडेंट हो जाती है. So you need to measure it at equilibrium condition. Okay. So your state variables are of two types, and those two types are, I think you are very much aware with, intensive state variables and extensive state variables. Can you explain what is intensive state variables? What are intensive state variables? Intensive state variables are those variables which do not depend upon size. They do not depend upon size. ये internal property है बोल सकते हो. They do not depend upon size. And extensive state variables are, they depend upon size. Okay. So intensive state variables do not depend upon size. Extensive state variables depends upon size. Example for intensive are, can you give some examples for intensive state variables? What are intensive state variables? Can you give examples? The examples are temperature, density, pressure, etc. Extensive state variables, mass, volume, etc. Okay. So your state variables are those variables which are observable or measurable property of a system, and it is when the system remains in equilibrium. You can measure it when the system remains in equilibrium. Such properties are called as state variables. They can be of two types, intensive and extensive. Intensive does not depend upon the size. It is an internal property. Extensive depends upon the size. Intensive ka examples are temperature, density, pressure, etc. Extensive ka examples are mass, volume, etc. Clear? So this was about intensive and extensive state variables. Of course, इन state variables का use करके ही आप equation of state बनाते हो. अगर याद हो what is equation of state? I've already explained you what is equation of state. For an ideal gas, your equation of state was given by, इसका काफी अच्छा definition पढ़ा था हमने in KTG. Equation of state. Equation of state is that equation or mathematical relation that explains about the state of a gas. KTG का अगर याद हो. So ideal gas के लिए that equation was given by PV is equals to nRT, where P was the pressure, V was the volume, N is the number of moles, R is the gas constant and T is the temperature. So आप ये PVT को use करके for a particular fixed value of N, आप किसी भी gas का एक equation derive कर सकते हो. And such equations are given by, are known as equation of a state. This explains the state of a gas. Okay. So जब आप किसी भी state variables का use करके equation बनाते हो, that is considered to be a equation of a state. Of course, दो मैंने बोला दो independent होते हैं, तीसरा अपने आप dependent हो जाता है. So तीन cases बन सकते हैं. What are they? या तो आप PV को consider करके चलो, या तो आप PT को consider करके चलो, या तो आप VT को consider करके चलो. आप PV को consider कर रहे हो means your temperature will be constant for a particular value of P and V. आप PT को consider कर रहे हो, then your volume will be constant for a particular value of P and T. आप volume और temperature को consider करके चल रहे हो, तो your pressure will be constant for this particular V and T. Okay, so this can be of three types where you can consider the combination of PV, PT and VT. आपको अगर पता हो इन cases को क्या बोला जाता है, that we will discuss कि such processes have been given a name. कि जब pressure constant होता है तो उसका एक particular नाम होता है, temperature constant होता है तो उसका एक particular नाम होता है, और जब आपका volume constant होता है तो उसका एक particular नाम होता है. Those processes have been given a name that I will discuss further.
Now let's discuss about the equilibrium. When you say that your system is in equilibrium, कब बोलते हो कि आपका system कभी भी equilibrium में? कोई भी system को आप equilibrium में कब बोलते हैं? And what do you mean by equilibrium first of all? Can anyone explain what do you mean by equilibrium? जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक साथ सेटिस्फाई होते हैं तब वो इक्विलिब्रियम में आता है. No, this is not the correct definition for equilibrium. Anything else? Though whatever you are saying is correct, but कभी-कभी ऐसा हम करते हैं कि हम टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख के प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं. And you draw a PV graph. Then can you say your system is in equilibrium? मींस No. जब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर बैलेंस हो जाता है. Many more cases are there. Can you explain further? If you want to say that system is in equilibrium, please listen it properly. There are the three cases. जब आप बोलते हो कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम है. दो गैजान जो तुमने आंसर किया, it is not totally wrong, but for explaining a perfect equilibrium condition, your system must satisfy these three conditions. What are those conditions? That first condition, it should be at mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium का मतलब क्या होता है कि कोई भी external या internal forces unbalanced नहीं है. Means their forces are totally balanced, whether it is an external force or whether it is an internal force, all the forces are balanced. When all the forces are balanced in the system, it is considered that it is in the mechanical equilibrium. When you talk in the terms of chemicals, you can talk in the terms of pressure. When you say that the pressure of the gas throughout the experiment is constant, when you say pressure of the gas throughout the experiment is constant, then you can say that it is at mechanical equilibrium. So for saying equilibrium, the first condition that your system must follow is your mechanical equilibrium. That is, any of the forces, whether it is an internal force or external force, that is going to be a balance. That is going to be balanced. If it is balanced, then only you can say that your system is in mechanical equilibrium. The second thing that it should satisfy ऐसे फिर वो केमिकल और थर्मल का भी रहेगा ना, लाइक वो टेम्परेचर और कुछ चीज के exactly. ऊपर I'm depend coming to रहेगा. that only. Yeah, I'm coming to that also. Next is chemical equilibrium. Your system is said to be chemical equilibrium when the reactions, that is your backward and forward reactions, are balanced. ना तो backward reaction हो रहा है ना तो forward reaction हो रहा है. जब ऐसा condition होता है, then you say that it is at a chemical equilibrium. और ना तो diffusion हो. Diffusion का मतलब समझा सकते हो क्या होता है? What is diffusion? Can you explain what is diffusion? कोई बता सकता है what is diffusion? Okay, let me explain. Diffusion का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, समझो आपने अगर एक सिस्टम लिया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक साइड में बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स है और एक साइड में कम मैटर है गैस मॉलिक्यूल का. तो जहां पर ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स है, वहां से जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देंगे? कम की तरफ. मतलब जब कहीं पर ट्रांसफर होता है मैटर का बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द masses, such is considered to be diffusion. जब there is no diffusion, जब कहीं पर diffusion नहीं होता, such conditions, ना तो आपका reaction backward forward होना चाहिए, ना तो because of the matter वहां पर diffusion होना चाहिए. तब such cases में आप बोलते हो कि your system is in chemical equilibrium. And the third case is the thermal equilibrium, जिसके बारे में already हमने बहुत deep में पढ़ा हुआ है कि what is thermal equilibrium. When there is no heat transfer, or you can say that the temperature is constant, then you say that it is in the thermal equilibrium. So if your system is said to be in the equilibrium, it means it is satisfying these three conditions: mechanical equilibrium, chemical equilibrium, and thermal equilibrium. Mechanical is no unbalanced forces there, whether it is internal or external. Chemical equilibrium means no forward backward reaction is taking place, or there is no diffusion. Diffusion is transfer of matter from higher proportion to lower proportion. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं का मैटर कहीं पर जाकर डिफ्यूज हो. डिफ्यूज होने का मतलब ये होता है गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर. बायो को ये बायो वाले स्टूडेंट्स को ये इसके बारे में पता होगा व्हाट इज डिफ्यूजन. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आयुष, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर देयर. योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर बैलेंस्ड. नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर being acted on your system.
And the last one is the thermal equilibrium. As you all know, I have already discussed in deep about the thermal equilibrium. I think no need to explain it again. Okay. So these are the three conditions to for a system to be in equilibrium. Let's go ahead with a new topic. Hope the things are clear till here. No doubt. हेलो Yeah, ask. मैम, मुझे आपने पहले बताया ना अभी पी वी तब टी कांस्टेंट, वी टी तब पी कांस्टेंट. हाँ, तो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ाऊंगी कि क्या किया जाता है, किसी एक चीज को कांस्टेंट रख के बाकी दो चीजों को वैरी करके उसका ग्राफ बनाया जाता है. सच मैम वो तो प्रोसेसेस. लॉ है ना सर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वही है ना. हाँ, और ऐसे ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ तो है, उसके अलावा इन प्रोसेसेस के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है कि जब आपका कभी वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में देखा जाता है, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में देखा जाता है. सो दिस प्रोसेसेस आर आल्सो गिवन देयर नेम. ऑफ कोर्स दिस आर द लॉज जिसने आपके आइडियल गैस लॉ को ये किया है, डिराइव किया है. बट दिस प्रोसेसेस, जिस प्रोसेस के हेल्प से ये चार्ल्स लॉ, जो प्रोसेसेस चार्ल्स लॉ ने, बॉयल्स ने यूज किया, उन प्रोसेसेस को भी आगे जाकर नाम दिया गया है. दैट वी विल डिस्कस फर्दर कि ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है. What such type of processes are known as. Okay, so we'll discuss it afterwards. Let's go ahead. The next topic that I'm going to explain, and that is very important as entrance point of view. I think तुम्हारी केमिस्ट्री में भी काफी डीप में ये टॉपिक हुआ होगा. So please, अगर वहां नहीं समझा है तो यहाँ पर ध्यान से समझो. ये ही कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जाएगा मेरा, जहां तक मुझे लगता है. सो प्लीज ध्यान से समझो और उन चीजों को समझने की कोशिश करो जो चीजें मैं बोलने जा रही हूँ. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पीवी डायग्राम. सुना है कुछ इसके बारे में? पीवी डायग्राम और पीवी कर्व नहीं लिया है ये सर ने? पीवी डायग्राम और पीवी कर्व सर ने नहीं लिया? पीवी डायग्राम, पीवी कर्व लिया है शायद मैम. लिया ही होगा. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर वहां से थोड़ा बहुत ब्लर हुआ है तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो एक तो फर्स्ट लॉ होता है और दूसरा आपका पीवी डायग्राम होता है. और आपके एंट्रेंस एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली पीवी डायग्राम से. तो आपको पीवी डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवी डायग्राम का यूज करके आप सिस्टम का वर्क डन निकालते हो कि सिस्टम ने कितना काम किया है. विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम आप सिस्टम का वर्क डन, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर सकते हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पीवी डायग्राम इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, ऑफ कोर्स व्हेन आई एम सेइंग पीवी डायग्राम, ये इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि वी आर गोइंग टू यूज प्रेशर एंड वॉल्यूम एट डिफरेंट वैल्यूज. एंड वी आर व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड कि अगर आप दो वेरिएबल्स ले रहे हो तो एक को आप कांस्टेंट रखोगे. एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट इज पी एंड बी, the variable that I am keeping constant is temperature. जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, ऐसे केसेस को आइसोथर्मल कंडीशंस बोला जाता है. आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है योर टेम्परेचर इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट. ओके, सो पीवी डायग्राम में क्या किया जाता है? इट इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम. ये जो होता है, ये पीवी जो डायग्राम होता है, इट इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्टेट ऑफ अ सिस्टम. कि आपका जो सिस्टम है वो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम पे कैसा बिहेव कर. Let's take one diagram for this at an isothermal condition, that is your temperature is constant here. When you take a PV diagram, P versus V. Okay, now I am drawing one graph here. ठीक है, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है. अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, let's say my system is starting from A and ending at B. This is known as PV diagram. मेरा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ है A पे और उसका जो फाइनल स्टेज है वो B पे है. ठीक है, so this part is your PI, that is initial pressure, and this part is your PF, that is final pressure. This one is your initial volume VI, and this one is your फाइनल वॉल्यूम VF. इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कुछ इसके वर्क डन के बारे में? कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इट्स वर्क डन? क्या क्या बता सकते हो इस ग्राफ को देख के? कुछ कंक्लूड हो रहा है? क्या समझा सकते हो ग्राफ को देखकर?
नो वन? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैंने क्या बोला कि व्हेन आई एम गोइंग फॉर पीवी डायग्राम मींस यू आर गोइंग टू यूज प्रेशर वैल्यूज एंड वॉल्यूम वैल्यूज। ओके ओके सौरभ रजक, अकॉर्डिंग टू यू वर्क डन इज नेगेटिव मींस यू आप केमिस्ट्री के अप्रोच के हिसाब से देख रहे हो, करेक्ट? अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री अप्रोच इफ यू आर गोइंग द वर्क डन इज नेगेटिव, and according to the physics approach if you are going, your work done is going to be positive. Okay, so I am going according to the physics approach that of course my volume is increasing here. According to the Saurabh, work done is negative. It is not wrong, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप फिजिक्स अप्रोच के साथ जा रहे हो, केमिस्ट्री अप्रोच के साथ जा रहे हो, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट द आंसर टू बी करेक्ट। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा एट द लास्ट आपको सेम मिलेगा, क्योंकि आपको ऊपर ही इक्वेशन में चेंजेस करना होगा जब आप सॉल्व कर रहे होगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, सो हियर ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स कांसेप्ट आई एम गोइंग। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं, सबसे पहली बात, ऐसे ग्राफ्स को जिनको कांस्टेंट टेम्परेचर बनाया जाता है, ऐसे ग्राफ को आइसोथर्म ग्राफ बोला जाता है, बिकॉज दिस ग्राफ्स आर ड्रॉन एट आइसोथर्मल कंडीशंस, टेम्परेचर इज बीइंग कांस्टेंट, so such graphs are considered to be isotherm graph. दूसरी बात ये ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं कि मेरा जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, मींस देयर इज अ चेंज इन द प्रेशर ऑलवेज, एंड जो वॉल्यूम है वो VI इनिशियल से VI फाइनल पे जा रहा है, एंड माय वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सो व्हेन माय वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मतलब हो ना हो माय सिस्टम इज एक्सपांडिंग। ये अगर मैं एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करूँ जिसके अंदर मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो और उसमें उस मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा जो गैस के बीच का प्रेशर है, जो गैसेस एक दूसरे से चिपक के पड़े हुए एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो गैस के प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है तो दे विल इजीली गेट स्प्रेड अप। ओके, तो दिस इज व्हाट माय दिस ग्राफ इज एक्सप्लेनिंग मी दैट ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सपांशन हियर। According to the physics approach, in expansion, your work done is positive because your volume is increasing here and the pressure is decreasing because the gas molecules are expanding, going away from each other. Correct? So this is what is the explanation of this graph. And with the help of this graph, you can find the work done in this particular process. ये जो expansion होते हुए work done हुआ है, you can calculate that work done with the help of this graph. Okay? Let's see how we'll calculate it. देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, और शुड आई मूव अहेड? ओके, आई एम गोइंग अहेड। ऑफ कोर्स एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू वर्क डन। आपका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा दैट विल गिव यू वर्क डन। आपको पता है कि एरिया कैसे निकाला जाता है? ओके, since this graph is not a perfect, it does not have a perfect shape, curve है, तो आपको याद होगा कि जब भी कोई कर्व वाला कंडीशन होता है we take an integration there, correct है? So of course volume is changing from VI to VF, so your equation that can help you to calculate the work done is given by dW is equals to integral of work done from VI to VF, that is equals to integral of VI to VF and work done is given by what? PdV. अब जो लोग केमिस्ट्री का अप्रोच लेके वर्क डन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे थे, उनको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन उनको आगे लेना है, बट अगर फिजिक्स का अप्रोच लेके चल रहे हो तो यू विल सिंपली गो फॉर PdV, दैट्स ऑल, एंड दैट इज योर वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम VI to VF. अब एक क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। नाउ एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये P is the pressure and dV is the change in volume, but इस पर्टिकुलर केस में प्लीज ध्यान से सुनो, प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, तो कौन सा प्रेशर का वैल्यू लेने का? व्हाट शुड वी डू? अगर यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता तो कोई एक वैल्यू ले लेते, वो पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते और वॉल्यूम चेंज ले लेते, बट यहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट है नहीं, प्रेशर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। सो व्हाट शुड वी गो फॉर? क्या करना चाहिए? कुछ बता सकते हो, क्या कर सकते हो? Can anyone explain what you can do? Anyone here सोच सकते हो? Or should I explain? अब let us consider the gas you are considering is an ideal gas. Real gases के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। PV is equals to nRT होता है, करेक्ट है?
PV is equals to nRT होता है, मुझे पता है मेरा प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो मैं कौन सा P का वैल्यू डालूं, आई डोंट नो. PV is equals to nRT होता है, P is equals to nRT by V होता है. मैं क्या करूंगी, P की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ. So my equation will become, हालांकि I'm going to explain this concept again, but still थोड़ा सा भी समझोगे तो चलेगा. जब हम प्रोसेसेस करेंगे तो इन चीजों के बारे में मैं वापस समझाऊंगी, ठीक है. P की जगह पे I'll substitute it nRT by V, और ये dV वैसे का वैसा ही, गोइंग फ्रॉम VI टू VF. अब nRT तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, nRT बाहर आ गया, VI टू VF ये क्या हो जाएगा, dV by V. 1 by V का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, करेक्ट. एंड इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन सच केसेस. जब आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम जब दोनों चेंज हो रहा है तो यू गो फॉर दिस कांसेप्ट. फिर आप प्रेशर को क्या करते हो, टेम्परेचर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हो, सो दैट आपका nRT कांस्टेंट हो जाए, बाहर आ जाए, और यू विल ओनली गो फॉर 1 by V ऑफ dV. समझ में आया ये प्रोसेस? जरा ध्यान से देखो और समझो, कुछ डाउट है तो पूछो. Again, I'm going to explain this in your process का concept, but please ask. हाँ पूछो. मैम डीवी कहाँ से आया? बेटा वर्क डन क्या होता है? What is work done? PdV ना, यही dV आगे आया हुआ है. वर्क डन इज PdV ना सृष्टि? सृष्टि यस मैम. क्लियर हुआ? हाँ हाँ. बाकी चीजें क्लियर हुई? हाँ. Okay. So, if anyone is having doubt, please ask. हेलो मैम. हाँ पूछो. मैम ये जो W का हमने इंटीग्रेशन लिया है, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट VI और VF क्यों लिया हम लोग ने? सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा VI टू VF, क्योंकि DW का आप इंटीग्रेशन लोगे तो टोटल W मिलता है. VI टू VF इसलिए लिया है क्योंकि वर्क डन कभी भी क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क डन. हाँ. तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है ना, एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम, इसीलिए इनिशियल से फाइनल तक का कंडीशन लिया हुआ है. प्रेशर क्यों नहीं लिया? समझ में आया? प्रेशर इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रेशर को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे वॉल्यूम के टर्म्स में, यू कैन गो इजीली. और यहाँ पे डीवी था ना, यहाँ पे डीवी, और वर्क डन इज PdV ना. अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, वर्क डन इज PdV. अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है तो आपका वर्क डन होगा, बराबर है. बट अगर ऐसा मैं बोलूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, मतलब डीवी क्या हो जाएगा आपका, जीरो. वहां पर प्रेशर होकर भी डीवी जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो. मतलब आपका वर्क डन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा डीवी पे, इसलिए डीवी का कंसेप्ट लेके सॉल्व किया. समझ में आया? Is there any other? Yes. मैम ये इंटीग्रेशन लेने से पहले W को डेरिवेटिव मतलब चेंज इन DW लिखना पड़ता है क्या ना? Of course. इसका मतलब ये होता है कि आप छोटे वर्क डन के बारे में बात कर रहे हो, और जब आप इंटीग्रेट कर देते हो इसका मतलब होता है कि आप टोटल वर्क डन के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि इट्स एन कर्व. अगर आपको याद हो, मैंने कर्व जब समझाया था, जब कोई भी कर्व होता है तो वहां पे आप ये जो आप इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हो, क्योंकि इसका एक परफेक्ट शेप नहीं होता. इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्राइंगल और परफेक्ट स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली एरिया आप विद द हेल्प ऑफ कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाते. तो इंटीग्रेशन क्या करता है, पहले उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, कट करता है, फिर उसके बाद जहां से जहां तक लेना है आप उसको लिमिट दे देते हो. तो इंटीग्रेशन वो छोटे छोटे सारे पार्ट्स को एड अप कर देते, इसीलिए ये लिमिट्स लगाया जाता है VI से VF तक, और DW लेके वर्क किया जाता है, कि मींस छोटा सा पार्ट लेके काम किया है, एंड गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस मींस इट इज एडिंग ऑल दो स्मॉल पार्ट्स टुगेदर एंड कैलकुलेटिंग द total W. Are you clear? Is there anyone else who is having doubt in this whole step? ध्यान से देखो, समझो, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ोगे. Always keep it in mind, if you are going according to the chemistry approach, you need to give one extra negative sign over here, जिसकी वजह से आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा. अदरवाइज अगर आप यहाँ पे प्लस लेके सॉल्व करोगे तो आपको नीचे आंसर पॉजिटिव में आएगा, आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे. तो केमिस्ट्री अप्रोच ले रहे हो तो हर जगह वो केमिस्ट्री में जो आगे माइनस PdV है वो दिमाग में सेटअप रखना है. आपको आंसर चाहे केमिस्ट्री से जाओ चाहे फिजिक्स से जाओ,
सेम मिलेगा, बट अप्रोचेस को मिक्स मत करना। फिजिक्स अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिजिक्स अप्रोच से जाओ, केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रहा है तो केमिस्ट्री अप्रोच से जाओ, दोनों आपको सेम कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। बट दोनों को अगर तुमने मिक्स किया यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, कीप इट इन माइंड। मैम अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ग्राफ चेंज होएगा ना? हाँ ऑफ कोर्स चेंज होगा, वो भी हम आगे करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस ग्राफ्स एज वेल। ठीक शुड है। आई गो अहेड दैट? आगे हाँ। डिस्कस करूं? ठीक है। होप तुमको पीवी डायग्राम समझ में आ रहा है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। ओके हियर नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर द नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट केस लिया, यू कैन सी द एरो। आपका ये एरो बहुत कुछ समझाता है, ये बात हमेशा याद रखना। when you are drawing the PV diagram, this arrow explains you something, that your system is going from this to this, your initial is this and final is this। अगर ये एरो का डायरेक्शन उल्टा है तो आपका फाइनल और इनिशियल का वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके लेट्स टेक द अनदर केस। अगेन आई एम ड्राइंग द PV डायग्राम इन विच माय P and V both are varying। वापस मैं ऐसा केस ले रही हूँ जिसमें P और V दोनों वैरी कर रहा है, बट सी द एरो का डायरेक्शन means now if I say again I am giving a condition that this is my initial, now what, sorry, this is the direction of the arrow, means direction of the arrow मतलब अब तुम्हारा सिस्टम यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, means this will be your initial condition now and this will be your final condition now। this is P versus V का ग्राफ। now आपका initial pressure and volume क्या होगा? this is your initial pressure and this is your initial volume, this is your final pressure and this will be your final volume, and this is a graph, this is a PV graph for negative work done according to physics approach। See बार बार मैं according to physics approach बोल रही हूँ कि आपको ये चीज याद रहे कि ये तो by the system on the system है, मैं physics के हिसाब से जा रही हूँ, मैं chemistry के हिसाब से नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत ही clarify करके चीजों को बोल रही हूँ कि आप confusion ना करो। okay so according to physics approach I am going for negative work done because volume देख रहे हो, volume it is going towards zero, volume decrease हो रहा है, volume decrease हो रहा है मतलब work done I am taking to be negative। और ये कौन सा work done है, कौन सा system है जिसमें आपका जो system है वो compress होता है, correct है? the piston is being compressed here। is the things visible to everyone? again it is being hang। हाँ अटक गया मैम। ये सब बार बार क्यों हो रहा है? Is it visible? किसी भी एक चीज पे अच्छे से स्टिक हो जाओ, either stick to the chemistry approach or you stick properly to the physics approach। okay now I'm going ahead। constant pressure, किसी ने मुझे पूछा था कि मैम अगर प्रेशर कांस्टेंट लेके करे तो ग्राफ ऑफ कोर्स अलग हो जाएगा, ग्राफ और सिंपल हो जाएगा if your pressure is constant and that is very good condition, you know। इसको सॉल्व करना और इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन से हमारा छुटकारा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, if this is pressure versus volume का ग्राफ and I am saying that the pressure is constant, ठीक है, and volume is changing from V initial, let's say arrow दिया है इस डायरेक्शन में, ठीक है, V initial to V final, करेक्ट। अब यहाँ पर वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इस ग्राफ का एक प्रॉपर शेप है। अब तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डीवी, पी आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डीवी, पी आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, डीवी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, वीएफ माइनस वीआई। सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। मतलब अगर ऐसा एक कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन दिया है तो आपका ग्राफ और इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। फिर आपको इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट लेके कर्व तो रह नहीं गया कि छोटा छोटा पार्ट देखना पड़ेगा। नाउ इट हैव अ प्रॉपर शेप, सो यू विल डायरेक्टली गो फॉर दिस फॉर्मूला। होप यू आर क्लियर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स अप्रोच बता सकता है कोई कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू दैट लास्ट टॉपिक ओनली। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो तुम बताओ कि क्या होगा? मैंने ये चीज ऑलरेडी शायद आयुष को समझाते समय कि वर्क डन 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली वर्क डन 0 हो जाएगा।
क्योंकि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है PdV, करेक्ट। और dV का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, इफ द वॉल्यूम इज नॉट गेटिंग चेंज, मीन्स व्हाट, वॉल्यूम इज नॉट गेटिंग चेंज मीन्स dV विल बी इक्वल्स टू 0। जितना पहले वॉल्यूम था उतना ही फाइनल वॉल्यूम भी है, देन योर वर्क डन विल बी 0, देयर इज नो वर्क डन। सिंपल, आपका मैकेनिकल के हिसाब से ही है। अगर आप किसी चीज पे परपेंडिकुलरली, लेट्स टेक अकॉर्डिंग टू योर मैकेनिकल कांसेप्ट, अगर आपने एक ब्लॉक लिया है उसके ऊपर सीधा ऊपर की तरफ से, इफ यू टेक अ ब्लॉक एंड 90 डिग्री पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स तो आप अप्लाई, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो आप अभी भी अप्लाई कर रहे हो ना, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या इसका, नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। वर्क डन इज F dx, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या हो गया, 0। सेम कंसेप्ट हियर, वर्क डन इज PdV, correct, work done is PdV. So of course if there is no change in the volume means there is no displacement, and if there is no displacement it means that your work done will be equals to 0। और आगे जाके एक ऐसा केस भी करेंगे जहां पर हम ये बोलेंगे कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट अगेन योर वर्क डन विल बी 0, और वो केस होगा आपका फ्री एक्सपांशन का केस, जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आर यू क्लियर टिल दिस मच? सो द लास्ट स्टेटमेंट for today is if your volume is constant, means if your dV is equals to 0 means your work done will be equals to 0। So are you clear with the PV diagram? और of course उसका PV बनाओगे तो कैसा बनेगा, प्रेशर अगर समझो वेरी कर रहा है, P versus V। So let's say the graph goes like this. This is your PI, this is your PF, and of course your volume is, so this is PV diagram for volume at constant, हेलो मिस। sorry, work done at constant, sorry, PV diagram at constant volume। हेलो हाँ बोलो। मैम, जब आपने बोला कि वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, हाँ मतलब मैम सारा एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, हाँ तो मैम बोल फिर सकते हो। प्रेशर कैसे वेरी करेगा तब? क्यों नहीं वेरी करेगा, एक कंटेनर लो, उसमें आपने ढक्कन लगा दिया, प्रेशर कुकर, आपने वॉल्यूम को क्या किया है, फिक्स कर दिया है, बराबर है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। प्रेशर वेरी होगा कि नहीं, कंटिन्यूअसली आप हीट कर रहे हो तो गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा जोर से एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, करेक्ट है, एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Then this is the concept. If you have any doubt till now you can ask, otherwise I'll stop.